Hello students, today we will see again chapter number 7, problem number 10, page number 307. Into this problem number 10, we pass necessary general entries in the books of draw. So before we start practical problem number 10, we read the problem carefully and then after we pass necessary general entry. Okay. Sagar drawn on after side bill on 21st November 2019 for rupees 21,000. The Sagar is drawn a bill 21,000 rupees on November 2019, 21st November 2019 for 3 months on Prasad. The bill is discounted by Sagar at 8% per annum. Means annuity. It is back. On maturity, the Prasad find himself unable to make payment of bill at request to Sagar to renew it. Sagar accept the request and draw the new bill of 1 month. For rupees 21,750. Into this transactions, the bill was 21,000 rupees and total renew bill amount is 21,750. Including interest, 21,000 plus including interest is amount is rupees 750 is given there. That is the renew of bill. 20,750 including interest which was duly accepted by Prasad. The bill was accepted by Prasad after the month of a new bill. Sagar deposited the bill into the bank for collection. Prasad honored the bill. The bill was honored. Bill के पूरे पैसे पे मिल गए. On the due date, the bank charges rupees 250 as a bank charges. So we pass the necessary entries. The necessary entries in the books of Sagar, prepare Sagar account. In the books of Prasad, prepare Sagar account. So into this, before we see who is drawer and driver into this problem. So Sagar is drawer and Prasad is our driver. Drawer is Sagar. Drawer is our Sagar and driving is Prasad. Prasad is driver. So in the books of Prasad, Sagar account. In the books of Prasad, Sagar account and past necessary generative. So read the problem carefully. फुल स्टॉप तो पूरा प्रॉब्लम एक सेंटेंस रीड करते हैं और उसी एंट्री क्या करते पास करते जनरल में. ओके. Sagar drawn on after side a bill 21st November 2019 rupees 21,000 at 3 month on Prasad. 3 month on Prasad. Sagar draw a bill 3 month on Prasad. Driving ऊपर उसने bill draw किया. तो in the books of Sagar we read the date first 2019 November 21st 2019 November 21st. This is bill drawn by Sagar on Prasad. So bill receivable account debit to Prasad account. Bill receivable account debit. Bill अभी निकाला गया हुआ है. Bill receivable account debit. Bill receivable account DR to Prasad account. To Prasad account credit. 21,000. Right down to debit side 21,000 and credit side 21,000. Bill drawn by Prasad. Being the bill drawn and acceptance received. Being bill drawn and acceptance received. Acceptance क्या हुआ आपको? Received हुआ. Being bill drawn and acceptance was received into this 21st November 2019. That is the entry pass now. The bill was discounted by Sagar at 8% per annum. 8% per annum से बिल डिस्काउंट किया गया. तो 21,000 at 8% divided by 100
फॉर 3 months डिवाइडेड बाय 12 months। आपको भी कैलकुलेट करना है, ये कट होगा 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 2 8, 210 into 2 0 2 420, 420 rupees is our discount of bill. So pass the same date 21st November, cash account debit, discount account debit, डिस्काउंट अकाउंट दिया है, 2 अकाउंट आपके डेबिट होने वाले। डिस्काउंट कितना आपका 422 या किसका 21,000 कितना अमाउंट आपका बिल्स का अमाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 21,000, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 21,000। यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा माइनस फ्रॉम 21,000 माइनस 420, हाउ मेनी रुपीज आर बैलेंस देयर, हाउ मेनी रुपीज आर देयर 21 गए, कितना रहता है देखो 21,000 माइनस 420 कितना रहता है, कैलकुलेट करो 20,500। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इसलिए थोड़ा कैलकुलेशंस करते जाओ। 21,058 प्लस 420 21,000। बी नेगोशिएशन स्टार्ट ओवर फ्रॉम बी, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिस्काउंटेड with bank या bill discounted with bank, bill discounted with bank। This is our entry of sentence number 1 and sentence number 2। First sentence क्या था, Sagar drawn after sight of 21st November 2019 for rupees 21,000 after 3 months on person। The bill was discounted by Sagar। The bill was discounted by Sagar। Sagar is our driver. He is a bill maker. He is a bill receiver. He is a seller. He is a creditor. He is a creditor. And person is our acceptors of bill. Bill acceptors. That person is. So when you pass the entry into the books of Sagar, cash account debit, discount account debit, because 21,000 at 8% per annum for 3 months, which we calculate 420 rupees minus then for 21,420। 21,000 में से 420 रुपए माइनस किया तो अमाउंट इज बैलेंस अमाउंट इज 20,580। So cash is received. How many cash are received? These are fill in the rest we calculate now. Discount account 420, total is 21,000. So how many rupees are balancing there? 21,000 minus 20 is 20,580। 20,580 रखा cash was received into this bill। Okay। After 3 months, which we calculate the due date। When the due date after 3 months, आपका due date after 3 months आपको दिया हुआ है। How to calculate the date of due date? New amount या legal date जिसे कहा जाता है 21st November 2019। 21st November 2019। After 3 months, 3 months included in that month November, and period of grace is 3 days। So 21 plus 3 is equal to 24 November, December, January and February। That is the 24th February 2019। That is our due date। It is another word called legal date। In that date which we pay our fee, that is a legal date। 24th February, 24th February 24th FUB 24 2019। आपका साल एक बार लिखने के बाद डबल लिखने की जरूरत नहीं। February 24 February आपका डेट। रीड द थर्ड सेंटेंस। अभी थर्ड सेंटेंस रीड करते हैं। पास द एंट्री नाउ। The Prasad find himself unable to make payment of bill and request to Sagar renew bill। तो रिन्यू बिल का उसने रिक्वेस्ट किया हुआ है। ये जो बिल था आपका 21,000 का, ये क्या करना पड़ेगा आपको, कैंसिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में रिन्यू की एंट्री आपको करना है। सो पास द एंट्री ऑफ कैंसिल 24 February 2019। प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। प्रसाद अकाउंट डेबिट रिक्वेस्ट टू द सागर कैंसिल माय बिल। प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जो बिल्स आपका था 21,000 का वो आपको कैंसिल करें टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 21,000 डेबिट 21,000 क्रेडिट। B
cancellation of bill, being the bill cancelled, being the bill cancelled. The bill was cancelled. The request of Prasad. Request of Prasad is to cancel the bill of 21,000 rupees. And renew the bill. इसके बाद renew की bill करना है. प्रसाद अपन डेबिट. Renew the bill. Renew it. सागर accept request and draw a new bill on 1 month. एक महीने के बाद उसने bill draw किया 21,750 including interest. Interest include किया. Total bill का कितना था आपका 21,000. और renew bill कितना देने वाला वो 20,750. ये आपका new bill. New bill with interest. न्यू बिल एक्चुअल बिल कितना आपका एक्चुअल बिल अमाउंट इज 21,000. सो रिन्यू न्यू बिल इज आवर 21,000. 750 जो एक्सेस अमाउंट है दैट इज आवर इंटरेस्ट ऑन दैट बिल. उस बिल का आपको मतलब इंटरेस्ट आपका है 750 का. तो पास द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. पास द एंट्री प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट. प्रसाद अकाउंट डेबिट. प्रसाद अकाउंट डेबिट. प्रसाद अकाउंट दिया. इंटरेस्ट अकाउंट दिया तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 750. डेट सेम 24 February. प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट बीइंग इंटरेस्ट पीरियड. आईएनटी लिखा चलता है इंटरेस्ट पीरियड फॉर रिन्यू बिल. इंटरेस्ट पीरियड फॉर रिन्यू बिल. रिन्यू बिल का आपने क्या किया इंटरेस्ट पीरियड में इंटरेस्ट पीरियड फॉर रिन्यू 24. Accepted the request for new bill of 21,000 including interest. Including interest आपको एंट्री कॉमन करना पड़ेगा 21,750 including interest at date 24 February. 24 February को आपने with interest आपने पे किया. तो पास द एंट्री वाज 20,000. बिल न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू प्रसाद अकाउंट क्रेडिट. तो प्रसाद अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट हुआ 21,750 21,750. बीइंग नरेशन स्टार्ट वर्क फ्रॉम being the bill drawn and accepted received. Being the new bill drawn and acceptance was received. Being the bill drawn and acceptance उसकी जो स्वीकृति है वो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. Being bill drawn and acceptance received 21,750 21,750 the amount of that taxes. Now after we read the next part. Next para देखो क्या है next sentence. Sagar deposits bill into the bank for collections. ये bill sent to bank for collection आपको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि he will send the bill for bank for collection. Bill sent to बैंक फॉर कलेक्शन अपॉन डेबिट. बीइंग सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अपॉन डीआर कितना है 21,750. पेज नंबर 307. बैंक फॉर टू न्यू बिल अकाउंट टू न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट. न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट विथ 21,750 21,750 21,750. that is the renew bill of 21,750. अमाउंट सीधा लिखो 21,750 21,750 the amount of being new bill sent to collection. New bill sent to bank for collection. New bill sent to bank for collection. Bank for collection. इसके बाद लेजर पोस्टिंग कर देंगे उसका 24 February 2019. We will send to bank for collection. Next last sentence. Prasad honored the bill and due date of bank charges 250. He paid the bank charges. He paid the bank charges after 1 month. तो आपकी एक्चुअल ड्यू डेट कितनी देखो अभी आपकी जो ड्यू डेट है 24 February. ये आपका न्यू आया 24 February 2019. After 1 month. After 1 month, he paid the renew the bill of that amount 21,750. 250 उसमें क्या है इसमें चार्जेस है उसके नोटिंग प्लस 3 27 24 प्लस 3 27 February के बाद में कौन आता है मार्च. दैट इज आवर
एक्चुअल ड्यू डेट, ये आपकी न्यू ड्यू डेट आ गई। तो 27 मार्च 2017, 27 मार्च 2019 ये आपको एंट्री कराएंगे इंटरेस्ट की। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, ये बिल का अमाउंट आपका है टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर, क्या बिल सेंड टू कलेक्शन फॉर बैंक, क्या बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऐसे निकल सकता है। बिल सेंड टू कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बैंक चार्जेस कितना आपका 250 अमाउंट बैंक चार्जेस वाज पेड बाय दैट पर्सन राइट 250। टोटल बिल कितना आपका 21,750। तो हाउ मेनी रुपीज आर बैलेंस इनटू दैट बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट रहता है 21,500, 21,500 दैट इज द बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। बीइंग इस प्रकार से, बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक, द अमाउंट ऑफ बिल collected by bank, amount of bill collected by bank with bank charges and deducting bank charges, deducting माइनस करना, कम करना, deducting बैंक charges, इस आपका एंट्री इन द बुक्स ऑफ सागर जनरेटिंग। तो इन द बुक्स ऑफ प्रसाद सागर अकाउंट आपको हमें प्रिपेयर करना है। तो टोटल बिल जो आपका है 2019, एक बार साल लिख लो 2019 द बुक्स ऑफ प्रकाश सागर अकाउंट, प्रकाश सागर की इसमें आपको प्रसाद की एंट्री की, प्रसाद की इसमें आपको सागर की एंट्री आपको पास करना है। प्रसाद इज क्रेडिट नाउ 21,000 दैट इज द बैलेंस ऑफ दैट पर्सन। उसका बैलेंस आपका है नवंबर 21 2019, नवंबर 21 ये आपका बैलेंस बाय बैलेंस बढ़ लो, क्रेडिट में आप बाय लिखते हैं, बाय बैलेंस बढ़ लो, ये बैलेंस सीडी कैरी डाउन कितना है 21,000 उसका बैलेंस है। बैलेंस ऐसा ब्रॉड डाउन करें तो बैलेंस ब्रॉड डाउन 21,000 एपिटाइज करो लैब में। बाद में प्रसाद बिल रिसीवेबल, प्रसाद अकाउंट डेबिट, प्रसाद अकाउंट डेबिट मिलता है बैंक अकाउंट 24 फरवरी तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये बिल्स पेबल क्या आपके बैंक में, ये आपका बैंक का अकाउंट है। तो बिल्स पेबल एक्सेप्टेड बाय गिवन नवंबर 21 जो आपका है एक्सेप्टेंस आपने क्या किया, आपने रिसीव किया, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एक्सेप्टेंस रिसीव। तो बिल्स पेबल अकाउंट नवंबर 21 टू बिल्स पेबल अकाउंट 21,000 लगा लिख सकते हैं। ब्रैकेट में आपको लिखना है वो एक्सेप्टेंस गिवन, उसने एक्सेप्टेंस क्या किया गिवन दिया, एक्सेप्टेंस गिवन बाय प्रसाद 21 नवंबर ये प्रसाद। अब एक्सेप्टेंस उसने गिवन दिया, बाद में उसने क्या किया प्रसाद अकाउंट डेबिट 24 फरवरी में क्या किया उसने डिसऑनर द बिल, कैंसिलेशन ऑफ बिल, ही रिक्वेस्ट टू दैट पर्सन सागर टू रिन्यू द न्यू बिल्स। तो 21 फरवरी 24 फरवरी को उसने रिक्वेस्ट किया कि रिन्यू द बिल, बिल्स पेबल डिसऑनर बिल बाय बिल्स पेबल अकाउंट डिसऑनर बिल। कितने का डिसऑनर बिल 21,000 रुपीज का आपका बिल क्या था डिसऑनर था 21,000। उसके बाद में प्रसाद अपने 750 का उसने क्या किया टोटल बिल उसने दिया 21,750 रिन्यू द बिल ऑफ प्रसाद। तो प्रसाद अकाउंट डिविडेंड टू प्रसाद अकाउंट 21,750 टू उसका बिल्स न्यू बिल का अमाउंट है टू बिल्स पेबल न्यू बिल एक्सपेंस टू बिल्स पेबल न्यू बिल आपका है, न्यू बिल एक्सपेक्टेड, न्यू बिल आपका है। डेट लिखो 24 फरवरी का आपका बिल है 24 फरवरी न्यू बिल न्यू प्रसाद बैंक अकाउंट डेबिट प्रसाद अकाउंट डेबिट। तब फिर टोटल आपको करना है इंटरेस्ट कितना मिला आपको 750 आपको इंटरेस्ट पे बाय प्रसाद फरवरी 24 इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट इज 750 पास द टोटल 42,000 plus 750
42,750, 42,750, 42,750, यहाँ पर भी 42,750, 42,750, 42,750, दैट इज बोथ साइड्स आर टैली नाउ इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 10। इस तरह आपको ये आपको प्राप्त करना है। फर्स्ट 21 का क्या किया आपने, 21,000 इज देयर बैलेंस हर पर्सन, बिल से बड़ा अकाउंट, बिल रिटर्न एक्सेप्टेंस रिसीव, उसने एक्सेप्टेंस रिसीव किया, एक्सेप्टेंस रिसीव बाय 21,000, इसका एक्सेप्टेंस था, इसका बैलेंस 21,000 उसका है, 21 द बिल अमाउंट, ये क्या आपका बिल अमाउंट है, टोटल बिल अमाउंट, ये बिल अमाउंट आपका 21,000 आपका दिया हुआ है, इट इज अमाउंट ऑफ बिल। सो देन आफ्टर 24th February प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, प्रसाद अकाउंट डेबिट न्यू बिल जो आपका था 21,000 का, बिल्स फॉर डिसऑनर, दैट बिल वॉज डिसऑनर, बिल आपका क्या कैंसिलेशन बिल डिसऑनर आपको 21,000 का, and then after he paid the interest on that bill 750 उसने क्या किया, बिल स्प्लिट किया है 750, then after he renew the new bill जो आपका था 750 का उसने पेड किया, renew the bills, that is the tally of problem number 10, page number 307। ये था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर नंबर 7 का प्रॉब्लम नंबर 10, pass necessary entry in the books of drawer and account of drawer in the books of Prasad Sagar। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ, सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, थैंक यू।